So we have discussed that cell wall is made up of the three parts. Any of the cell having cell between the two cells, suppose this is one cell, this is two cell, the second cell, between the two cells, the two plant cells, the connecting link or the common link is the middle lamella. On the either side of the middle lamella, this dotted portion, this is the primary cell wall. Cell wall, PCW. This is the primary cell wall Yes, of sir. this cell, first cell. This will be the primary cell wall of second cell. So this is the primary cell wall of the another cell. Inner to the primary cell wall. Cell में जब हम inside आते हैं, inner to the primary cell wall is the secondary cell wall. Secondary cell wall. This is the secondary cell wall. Okay. And inner to the secondary cell wall is the plasma membrane. Cytoplasm, plasma membrane. Here we are having the secondary cell wall. Okay, suppose this is cell membrane. This is cell membrane. So outer to cell membrane, very first is the secondary cell wall. Outer to that is the primary cell wall. Outer to that is the middle lamella. Middle lamella connects the two plant cells. This was the order that we have discussed. Remember this thing that we discussed previous day? So accordingly, three structures. First was the middle lamella. So if I talk about the middle lamella, it is present between the two adjacent cells. It is present between two adjacent cells. Okay. अगर इंडिविजुअली सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल वॉल. Generally, when we draw a plant cell very quickly, we show that this is the plant cell wall. So individually cell wall is considered as a unit, but this complete unit, the complete cell was itself made up of the three parts. So the outermost part is the middle lamella. Whenever we will come inside the cell, so after the middle lamella, primary cell wall and then secondary cell wall. So secondary cell wall of the cell wall is connected with the plasma membrane. Plasma membrane के बिल्कुल पास क्या होती है? Secondary cell wall. और Cell wall. क्या होता है? Middle lamella. So it is the outermost part of the any cell. Middle cell wall. It is mainly made up of a polysaccharide which is called pectin. Made up of pectin. Okay, and along with the pectin, along with this, in the pectin is a carbohydrate which is polysaccharide. It is a polysaccharide. Okay, the polysaccharides in this are negatively charged. The monomer unit galactronic acid is negatively charged, so they also attract positive ions. Negatively charged होते हैं, chemical composition में discuss करेंगे. So they also attract magnesium, potassium, calcium, etc. Okay, so mainly calcium और magnesium से बना होता है pectin. Okay, इनको calcium या magnesium के pectase बोले जाते हैं. So middle lamella is mainly consist of the pectin having calcium as well as the magnesium. कई बार ये MCQ questions में आता भी है. The component of pectin is, अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दे and mainly magnesium and calcium, so that will be the answer. Okay. It is generally absent on borders and surfaces. Border, surface and pits. Generally pits में, borders में या surface में ही absent होता है.
फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सरफेस सेल, अगर कोई रूट है, ये एपिडर्मिस जो है सरफेस सेल है, ठीक है। सरफेस सेल का मतलब सपोज कोई लीफ है, तो लीफ का सबसे अपर पार्ट क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मल सेल्स के ऊपर मिडल लैमेला नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कोई एडजेसेंट सेल्स नहीं है, ठीक है। या कोई भी बॉर्डर सेल, कहीं पे किसी चीज का बॉर्डर है, किसी भी ऑर्गन का, किसी ऑर्गन के टिश्यू का ये बॉर्डर है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है सरफेस पार्ट ही हो, सरफेस पार्ट का मतलब जो डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में हो, जैसे कि लीफ का अपर सरफेस, लीफ का लोअर सरफेस, स्टेम का आउटर मोस्ट सरफेस, जो स्टेम की जो एपिडर्मिस है वो भी सरफेस कहलाएगी। बॉर्डर सेल्स क्या होती है, विद इन इंटरनल टिश्यूज, इंटरनल टिश्यूज में भी अगर बीच में बॉर्डर है, इसके बाद कुछ नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, तो वहां पे भी मिडल लैमिला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज मिडल लैमिला इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, जहां पे दो एडजेसेंट सेल है ही नहीं, वहां पे मिडल लैमिला एब्सेंट होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस। यस सर। अगर सॉल्युबलाइजेशन की बात करें, ब्रेक डाउन की बात करें, तो जनरली आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स होते हैं विच ब्रेक डाउन दी डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, लाइक सेलुलेज ब्रेक डाउन दी सेलुलोज, ओके, एंड लाइपेज ब्रेक डाउन दी लिपिड्स। Similarly, there is an enzyme pectinase, because it is consist of the pectin, a polysaccharide. So that pectin is break down by the enzyme pectinase. It breaks down the pectin. By breaking the pectin, because it is made up of the pectin, it will surely break down the middle lamella also. Okay. Along with this, along with the pectinase enzyme, hot water, strong acids, strong acid like, for example, yes, example of any strong acid, H2SO4. HCl strong acid नहीं है बेटे, ammonium oxalate. So along with the pectinase enzyme, there are some other chemicals like hot water, strong acids, and ammonium oxalate, which can also break down pectin. And whenever I am saying that it is being break down the pectin, so it means they are breaking down the middle lamella. So middle lamella can be denatured by the pectinase enzyme, the hot water, strong acid, and ammonium oxalate. Pectinase is an enzyme. Since it is an enzyme, so enzymes are proteinaceous in nature. Pectinase किसका बना होगा? अमाइनो एसिड्स का. क्लियर है? The pectin Yes, is sir. consist of the carbohydrates. पैक्टीन के अंदर गैलेक्ट्रॉनिक एसिड जो होती है, मोनोमर यूनिट होती है, उसका पॉलीमर होता है पैक्टीन। बहुत सारे गैलेक्ट्रॉनिक एसिड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एसिड है क्योंकि, तो एसिड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आयंस लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम को अट्रैक्ट करता है। तो पैक्टीन एक कार्बोहाइड्रेट है, पैक्टिनेज एक प्रोटीन है, इट इज अ एंजाइम। क्लियर है? ब्रेकडाउन की वजह से एक फिनोमिना होता है बेटा, जैसे ही मिडल लैमिला ब्रेकडाउन हुआ, व्हाट इज द साइट ऑफ मिडल लैमिला? कहां प्रेजेंट होता है मिडल लैमिला? हमेशा बिटवीन टू सेल्स। ये बहुत सारी प्लांट सेल्स हैं। बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स देयर प्रेजेंट्स द मिडल लैमिला। If I applied the pectinase enzyme, the middle lamella will be degraded. So due to the degradation of the middle lamella, these two adjacent cells will be far apart. Okay, they will be separated, isn't it? नहीं होगा, बताइए ऐसा? So due to the breakdown, these cells will be separated like this. That might be not too much distance, but they are separated. Okay. This process, the separation of the cells, due to breakdown of middle lamella is called, कोई बता सकता है, is called what? The separation of cells due to the breakdown of middle lamella is called
Okay, I'll tell you maceration. So these are some properties of the middle lamella, that it is made up of the pectin present between the two adjacent cells. It is absent on the borders and the surfaces. Border and surface आप समझ गए. Surface means those cells which are in direct contact with the environment. Leaf का जो upper face है, that is a surface. Lower face is also a surface. Root का outer part is also a surface cells. और surface cells क्या होती है? Epidermis होती है, most outer covering. Like we are having the surface cell as our skin epidermis. बॉर्डर सेल्स होती है इंटरनल टिश्यूज में भी. अगर किसी चीज के बाद बॉर्डर है, ठीक है, उसके बाद कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे भी आपका मिडिल लैमेला एब्सेंट होता है. ओके, व्हाट आर सम ब्रेकिंग एजेंट्स लाइक पेक्टिनेज, हॉट वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक अमोनियम ऑक्सिलेट, HCl. एंड आफ्टर द सेपरेशन ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द मिडिल लैमेला, अ सेपरेशन इज caused which is called that process is called the maceration. क्लियर है बेटा मिडिल लैमेला? Yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir. What is maceration? This thing is clear to you? Yes, sir. So next means inner to the middle lamella between two adjacent cells. First thing was the middle lamella. Inner to the middle lamella is the primary cell wall. It is abbreviated as PCW, or you can write just primary cell wall. It is present inner to the middle lamella. See, if there is any border or surface cell, so it is the outermost covering of the cell wall in those cells. आउटर जो सरफेस की जो सेल होती है जिनमें मिडिल लैमेला नहीं है, तो वहां पे वेरी फर्स्टली किससे टैकल होंगे हम? प्राइमरी सेल वॉल से. सपोज दिस इज एपिडर्मल सेल, these two are the epidermal cells, this is the cell wall. So in this cell wall, the outermost part is the primary cell wall, not the middle lamella, because it is not connected to any other cell. It is direct in contact with the environment, but generally it is present inner to the middle lamella. Okay, it is the main component of cell wall in the young cells. जो बिल्कुल young cells होती हैं which are not fully matured. Okay, the new and young cells, they are having the main components of cell wall as the primary cell wall. मैंने कल भी एक बच्ची ने पूछा था, मैंने बताया था कि why the cells get deposited through the lignin. Okay, so as the course of time, जैसे जैसे cell mature होती है, lignin deposition होती जाती है. But when the cells are very young, there is no lignin deposition, since lignin is the main component of secondary cell wall. Secondary cell wall बहुत ज्यादा thick होती है as compared to primary cell wall. Primary cell wall thin होती है, secondary cell wall thick होती है. Both of them are the component of cell wall. इन सबसे मिलके ही primary, secondary, middle lamella से मिलके ही cell wall बनी है. But secondary is thick, primary is thin. Secondary is thick due to the deposition of lignin. So that lignin is not deposited in the young cells. That's why in the young cells, even the secondary cell wall is absent, or if present, that will be not deposited with the lignin. अगर secondary cell wall present भी है तो lignin नहीं होगा या होगी नहीं present young cells में. तो वहां पे मेन कंपोनेंट क्या हो जाएगा सेल वॉल का? प्राइमरी सेल वॉल. क्लियर है? पूरी सेल वॉल में 3 कंपोनेंट है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो उन तीनों में सबसे मेन यही है, एंड दिस इज द ट्रू सेल वॉल. अगर तीनों में से एक मेन यूनिट देखी जाए सेल वॉल का, मोस्ट पार्ट कौन सी फॉर्म कर रही है? तो प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म करती है, बिकॉज ऑल ऑफ द फंक्शंस दैट आर एसोसिएटेड विद द सेल वॉल आर मेनली अराइजेस ड्यू टू द प्राइमरी सेल वॉल. मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है प्राइमरी, ठीक है, थिन है, बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो ये मेन कंपोनेंट है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज थिन, ये थिन होती है, ठीक है, इलास्टिक होती है, एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन, और एक्सपेंड भी हो सकती है. ये इसी से पता चलता है इलास्टिक वर्ड से, क्योंकि इलास्टिक है तो कैपेबल है एक्सपेंशन में. सपोज ये प्राइमरी सेल वॉल है, दिस इज ओनली प्राइमरी सेल वॉल, सो इट कैन बी स्ट्रेच्ड, टू दिस एक्सटेंट.
वही सेल वॉल इलास्टिक है तो स्ट्रेच भी की जा सकती है, इट विल नॉट बर्स्ट अपॉन स्ट्रेचिंग. Okay, so it is capable of the expansion also. Generally, the thickness is 1 to 5 nanometer. Okay, generally it is 1 to 5 nanometer thick, means it is very thin. Clear है कुछ characters? The position, the main component of what? Main cell wall कहते हैं इसको, thin है, elastic है and capable of expansion, and that is the thickness. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, The sir. primary cell wall is mainly made up of, whenever we will say that cell wall is made up of what? So cell wall is made up of many things like cellulose, hemicellulose, pectin, glycoproteins, and some other components like suberin, lignin, etc. But these are the many components. But upon main things that concerned with the structure, we say that the cellulose, hemicellulose, and pectin. These three are the things that we say the cell wall is made up of: cellulose, hemicellulose, and pectin. Whenever we will say in general, not in detail. So along these three components, the cellulose is the main component of primary cell wall. Okay, means the primary cell wall is mainly made up of cellulose. No doubt hemicellulose present, pectin present, even in the primary cell wall. Although pectin is the main component of middle lamella, but the main component of primary cell wall is the cellulose. Cellulose is the polymer of glucose. आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े होंगे ना, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब मोनोसेकेराइड्स हैं. दो मोनोमर यूनिट्स, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब ज्वाइन होती हैं तो डाइसेकेराइड बनता है, जैसे कि सुक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है. जब दो से ज्यादा हो तो उनको ओलिगोसेकेराइड्स बोला जाता है, जनरली 8 तक. डाइसेकेराइड भी एक ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है. और 8 से भी ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स अगर ज्वाइन हो जाए, सपोज 1000 ग्लूकोज आपस में ज्वाइन करके चेन बना रहे हैं, सो दैट चेन विल बी कॉल्ड पॉलीसेकेराइड. ठीक है. मोनो, डाई, मोनो, ओलिगो या पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? तो जो सेलुलोज है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड. अब पॉलीसेकेराइड में क्या होनी चाहिए? मोनोसेकेराइड यूनिट. तो इसमें सेम मोनोसेकेराइड यूनिट नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, फिर ग्लूकोज है, ऐसा नहीं है. सारी की सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स क्या है? ग्लूकोज. तो बहुत सारे ग्लूकोज आपस में बाइंडेड होते हैं अल्फा 1 फॉर लिंकेज से, केमिकल कंपोजिशन में बताएंगे. ओके, सो दैट इज सेलुलोज. सेलुलोज इसका मेन कंपोनेंट है ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल. ओके, हाउ दिस सेलुलोज इज अरेंज्ड इन द प्राइमरी सेल वॉल? इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स. माइक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्म में अरेंज होता है. एक तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेता है सेलुलोज. खुद सेलुलोज पॉलीमर है और सेलुलोज के भी पॉलीमर्स यानी सेलुलोज यूनिट्स इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में अरेंज होती हैं. ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स माइक्रोफाइब्रिल्स हैं. ठीक है. सेल वॉल खुद सेल के भी कंपोनेंट होते हैं. साइटोस्केलेटन सुना है सभी ने? साइटोस्केलेटन जो सेल को शेप देता है, स्केलेटन एल आएगा. तो साइटोस्केलेटन में भी माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं. ठीक है. इसी तरह से सेल वॉल के अंदर मेन स्ट्रक्चर देने के लिए सेल वॉल को माइक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्म में सेल्यूलोज अरेंज होता है. ये माइक्रोफाइब्रिल्स एक अमॉर्फस लिक्विड में हम कह सकते हैं एम्बेडेड होते हैं, डूबे हुए होते हैं. इस अमॉर्फस लिक्विड को मैट्रिक्स बोलते हैं. ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं. जिस लिक्विड में ये एम्बेडेड है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं. ये मैट्रिक्स बनी होती है. दिस मैट्रिक्स इज कंसिस्ट ऑफ हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा, सुबेरिन, लिग्निन. हालांकि प्राइमरी में लिग्निन सुबेरिन नहीं है, तो यहाँ पे जनरली पैक्टिन है और हेमीसेल्यूलोज है मैट्रिक्स में. और इस मैट्रिक्स में सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स एम्बेडेड हैं. तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर है. मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज है. ठीक है. लेकिन हेमीसेल्यूलोज भी प्रेजेंट है और पैक्टिन भी प्रेजेंट है. सिमिलरली मिडिल लैमेला जो था उसका मेन कंपोनेंट क्या था? पैक्टिन. वहां पे सेल्यूलोज नहीं था. क्लियर है? क्लियर है बेटा? मेन कंपोनेंट क्या है प्राइमरी सेल वॉल का? Yes, sir. Yes, sir. द मेन कंपोनेंट इज द सेल्यूलोज.
Okay, let's discuss some more characters. So what is the location? It is present just adjacent to the middle lamella. Okay, and it is containing cellulose, hemicellulose and pectin. But the main component is cellulose, but we doesn't say that the hemicellulose and pectin is absent. One more property about this is the expansion. Primary cell wall have a property of expansion. The expansion in plant cells is caused by the Turgor pressure. Plant water relations आता है बेटे plant physiology में, वहां पे हम पढ़ते हैं एक pressure that is Turgor pressure. Whenever the water enter into a cell, this is a cell. This is a plant cell, this is the plasma membrane and the protoplasm nucleus and all that stuff. Whenever the water enter into the cell, this protoplasm have a pressure due to the entry of water. जैसे किसी balloon में आप water डालेंगे, that balloon starts stretching, तो ये cell भी stretch होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे cell wall है, अंदर का कंटेंट एक हाई प्रेशर जनरेट करेगा कि आप स्ट्रेच होइए, सेल को स्ट्रेच होने के लिए मजबूर करेगा. तो कुछ एक्सटेंट तक अब वो सारा प्रेशर लास्ट में तो सेल वॉल पे आएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर तो सेल वॉल है प्लांट सेल में, तो सेल वॉल भी स्ट्रेच होगी. पहले सेल का साइज जो इतना था अब स्ट्रेच होके इतना हो गया, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर से एक प्रेशर लगा रहा है. पानी जब अंदर आ रहा है तो पानी वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है, तो सेल वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है पानी अंदर आने की वजह से, वाटर कमिंग की वजह से सेल वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है ऑन वॉल, वो होता है टर्गर प्रेशर. ठीक है, अगर ये प्रेशर लगता ही रहा तो एक लिमिट के बाद सेल वॉल बर्स्ट हो जाएगी. ओके, क्या एनिमल्स में सेल वॉल होती है? यस एनीवन? नो सर. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. सो इफ वी नहीं प्लेस होती अ एनिमल सेल इन दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है, सपोज ये कोई एनिमल सेल है जहां सॉल्यूशन में बाहर पानी ज्यादा हो एज कंपेयर टू सेल, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑस्मोसिस the water will move from its higher concentration to lower concentration. लोअर अंदर कंसंट्रेशन. आएगा, अब पानी अंदर आया तो कौन सा प्रेशर लगेगा? टर्गर प्रेशर. ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग द एंडोस्मोसिस. वाटर अंदर आएगा, वाटर अंदर आने की वजह से टर्गर प्रेशर लगेगा. दैट टर्गर प्रेशर विल बी अप्लाइड ऑन द वॉल. इफ देयर इज नो सेल वॉल, आफ्टर वन लिमिट द एनिमल सेल विल बर्स्ट. ठीक है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है. अब जिसके पास सेल वॉल है, प्लांट सेल, ये बर्स्ट नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज एक प्रेशर वॉल से भी लगाया जाता है. जो वॉल पे लग रहा था वो टर्गर प्रेशर था, अब वॉल भी एक प्रेशर लगाती है वापस अगेंस्ट द टर्गर प्रेशर. वॉल एक प्रेशर लगाती है जिसको वॉल प्रेशर बोला जाता है. क्लियर है? वॉल प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर. तो वॉल प्रेशर इसको बर्स्ट होने से बचा लेता है. बहुत सारी लिमिट तक एक्सपेंड होती रहेगी. जब फुली स्ट्रेच हो जाएगी सेल वॉल, उस टाइम पे फुली स्ट्रेच सेल में सेल वॉल इक्वल प्रेशर लगाती है टर्गर प्रेशर के. जितना टर्गर प्रेशर लग रहा है, सपोज 15 पास्कल्स लग रहा है, तो इतना ही अपोजिट प्रेशर वॉल लगा देगी, ताकि इस टर्गर प्रेशर को बैलेंस कर दिया जाए और जो सेल है वो बर्स्ट ना हो. क्लियर है? एनिमल सेल क्यों बर्स्ट हो जाती है, प्लांट सेल क्यों नहीं बर्स्ट होती? क्लियर है? Yes, sir. यस. Yes, sir. So the main concern or the important thing, this was the plant physiology. The main concern about the cell, that why cells is capable of expansion, is due to a proteins which are called expansins proteins. कुछ प्रोटीन्स होते हैं एक्सपेंसिन्स प्रोटीन विच इंक्रीजेस द टर्गर प्रेशर और सेल को स्ट्रेच कराने में हेल्प करते हैं. कोई सेल जब स्ट्रेच होगी, पहले कोई सेल इतनी थी, अब ये सेल इतनी हो गई, तो ये सेल का सेल डिवीजन कहलाएगा या सेल का एलोंगेशन कहलाएगा? क्या सर? अगर सेल पहले साइज में 5 यस नैनोमीटर, सर. ठीक है, Yes, sir. 5 मिलीमीटर डायमीटर थी, हाँ यस सर. यस सर. अब उसकी डायमीटर 15 मिलीमीटर, तो ये सेल डिवीजन है Yes, या sir. सेल एलोंगेशन है? Elongation. एलोंगेशन है.
तो एक्सपेंसिन्स प्रोटीन्स सेल का एलोंगेशन कराते हैं. एक्सपेंसिन्स प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन. ठीक है. यस सर. कौन सा हार्मोन सेल एलोंगेशन कराता है? Which hormone causes cell elongation? cytokinin. साइटोकाइनिन क्यों बेटा? साइटोकाइनिन तो सेल डिवीजन कराता है. ऑक्सिन. सेल डिवीजन थोड़ी हो रहा है. ऑक्सिन हार्मोन कॉजेज एक्सपेंशन या एलोंगेशन. एलोंगेशन जिब्रेलिन भी कराता है, बट जिब्रेलिन डिफरेंट प्रोटीन्स को सीक्रेट करता है. ठीक है. एक्सईटी प्रोटीन्स होते हैं. एक्सईटी प्रोटीन जिब्रेलिन सीक्रेट करता है, एक्सपेंसिन्स ऑक्सिन करता है. ठीक है. तो स्टेम एलोंगेशन ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों हार्मोन करा सकते हैं, मेनली ऑक्सिन. ऑक्सिन जब साइटोकाइनिन के साथ प्रेजेंट होता है, जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों दे दिए जाए किसी को, तो सेल्स ग्रोथ भी करेंगी, सेल डिवाइड भी करेंगी, और जो डिवाइड हो रही है सेल वो एक्सपेंड भी करेंगी. यानी मोर सेल डिवीजन होगा, मोर सेल एक्सपेंशन होगा. ओके. Yes, sir. This was the primary cell wall. What is the inner component to the primary cell wall? Middle lamella, then primary. Secondary. उसके बाद Secondary cell wall. secondary cell wall. So in the next, inner to the primary cell wall, that is the secondary cell wall. It is the third component. Secondary cell wall is the last component or the third component of the cell wall. It is mainly present in fully mature cells. Cells when become mature, okay, and after the mature stage, later on also, when the cells stop growing, then the secondary cell wall also becomes the part of the cell wall. ठीक है. यंग सेल्स में जरूरी नहीं सेकेंडरी सेल वॉल हो, बट जब मैच्योर सेल्स होती हैं तो उनके अंदर क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इट इज स्लाइटली थिकर, slightly क्या more thicker than primary cell wall. It generally ranges from 5 to 10 nanometer. How much thick was the primary cell wall? 1 to 5 or 1 to 4 generally, but this is 5 to 10 nanometer thick. It is also consist of cellulose, hemicellulose, lignin, some other compounds. Now lignin was absent in primary cell wall, lignin was absent in middle lamella, suberin, etc. So lignin and suberin, these are some fatty compounds, not fatty acids. These are some fatty compounds which are thicker than the cellulose. Okay, so undoubtedly it is also made up of the cellulose, and it doesn't mean the lignin is more as compared to cellulose. यहाँ भी main component cellulose है, but along with the cellulose some other fatty compounds like lignin and suberin are present, and necessarily pectin is absent. This point to be remembered. It is also made up of cellulose, hemicellulose, along with the lignin and suberin, which were previously absent in the primary or middle lamella. Lignin and suberin are present, but not more than the cellulose. Main component यहाँ भी cellulose ही है. Arrangement same है. Microfibrils. Microfibrils are of cellulose, but the matrix of the primary cell wall have hemicellulose and pectin, whereas the matrix of the secondary cell wall have lignin, suberin, and hemicellulose. If the pectin will be present in matrix, क्या pectin होगा?
नहीं होगा, pectin will be absent in the matrix of secondary cell wall, but in the matrix of the primary cell wall pectin, hemicellulose was present. There the lignin and suberin were absent. So the main cause which causes the thick secondary cell wall, which makes the secondary cell wall thick, is these two compounds, lignin and the suberin, mainly the lignin. क्लियर है? अब तो मैच्योर सेल, जितनी ज्यादा मैच्योर होती जाएगी सेल, उतना ही ज्यादा लिग्निन बनता जाता है उसके अंदर, which makes the mature cell thicker. So during young stages all the cells will be living and non-thick, means thin. आपने पैरेन्काइमा टिश्यू सुना हो, अगर प्लांट सेल्स में सिंपल टिश्यू होता है पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है, थिन है। थिन होने का कारण क्या है कि उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल है, मींस इट इज ओनली मेड अप ऑफ सेलुलोज मेनली, नॉट द लिग्निन। अब स्क्लेरेन्काइमा भी आपने सुना होगा। स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू, बिकॉज स्क्लेरेन्काइमा में सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा होती है, इट मींस द लिग्निन इज डिपॉजिटेड। So according to texture of the cell, if the cell is thin, it is lacking the secondary cell wall, उसमें secondary cell wall नहीं होगी. If a cell is very thick, it is having the more secondary cell wall as compared to primary. Clear है बेटे? Clear है composition? सर वॉल में मैट्रिक्स में क्या था? Yes. सर प्राइमरी सेल वॉल में मैट्रिक्स क्या कंसिस्ट करती है? Although आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा सुना है, मैं बता देता हूँ। प्राइमरी सेल वॉल की मैट्रिक्स देखिए, अरेंजमेंट सेम है। प्राइमरी सेल वॉल में माइक्रोफाइब्रिल्स सेलुलोज के हैं, सेकेंडरी में भी सेलुलोज के हैं। मैट्रिक्स की अगर बात करूं, मैट्रिक्स वो अमॉर्फस लिक्विड है जिसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स एम्बेडेड है। तो प्राइमरी सेल वॉल में मैट्रिक्स में हेमीसेलुलोज है, पैक्टीन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। बट मैट्रिक्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल की मैट्रिक्स में एक तो पैक्टीन नहीं है, ठीक है। दूसरा हेमीसेलुलोज कॉमन है, हेमीसेलुलोज है। दूसरा फर्क यहाँ पे लिग्निन और सुबेरिन है जो प्राइमरी में नहीं थे, दीज आर थिक कंपाउंड्स। तो लिग्निन है, सुबेरिन है और ग्लाइकोप्रोटीन्स फिर से कॉमन है। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है। अब क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए, इफ इट इज थिकर, सो व्हाट कुड बी द मेन फंक्शन ऑफ दिस? अगर थिकर है तो सेल वॉल की कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है? मैं आपसे कहूं प्लांट बहुत ज्यादा रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है या हार्ड है? तो चलिए मुझे ये बताइए, विंका रोजिया सदाबहार ज्यादा हार्ड है या नीम ज्यादा हार्ड है? कौन सा ज्यादा रिजिड है? रिजिडिटी का भी कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सदाबहार देखा है सभी ने, एक हार्बेशियस प्लांट है, हर्ब होती है, इस तरह के पेटल्स होते हैं फ्लावर में, व्हाइट कलर के हो सकते हैं, जनरली वॉयलेट होते हैं। देखा होगा नहीं, फ्लावर बहुत कॉमन है, सदाबहार, विंका रोजिया और कैथरैंथस रोजियस बॉटनिकल नेम है, अपोसाइनेसी फैमिली होती है। तो सदाबहार या नीम में से कौन सा ज्यादा रिजिड है, कौन सा हार्ड है? नीम सर। नीम। इट मींस, इट जनरली इंडिकेट्स, अगर एपिडर्मिस की बात करूं मैं, आउटर कवरिंग की, ये स्टेम है, स्टेम की सबसे आउटर कवरिंग एपिडर्मिस की सेल्स, यहां भी नीम की आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, ऑल्दो इनको सेकेंडरी एपिडर्मिस या पेरिडर्म बोलते हैं। तो इसमें यंग सेल्स है सारी, और उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल या तो एब्सेंट है या बहुत कम है, यानी लिग्निन है ही नहीं, तभी तो ये थिक नहीं है। नीम की जो एपिडर्मिस है, इसके अंदर जो सेल्स हैं, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स खत्म हो चुकी, यहाँ सारा का सारा लिग्निन ही डिपॉजिट है, यानी यहाँ सेल्स डेड हैं। यस सर, तो फिर ये ज्यादा रिजिड है। यहाँ सेल्स में सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा है, इसलिए ये थिक है। तो लिग्निन सारा रीजन है थिकनेस का, और वहां केवल सेलुलोज प्राइमरी सेल वॉल है, सेलुलोज इज थिन कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से हम नेचर बता सकते हैं। तो क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो सेकेंडरी सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या हो गया? प्लांट को स्ट्रेंथ देना, जो कि सेल वॉल का भी फंक्शन है। अगर देखिए स्टेम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, तो कभी भी 400 फीट हाइट अटेन नहीं कर सकता वो प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो 400 फीट के हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में ट्रीज होते हैं रेड वुड ट्रीज, सिक्वोया ट्रीज बोलते हैं इनको,
सिकोया सेमी परवियंस। ठीक है, जाइंट ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया या रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया बोला जाता है सिकोया सेमी परवियंस। वर्ल्ड के लार्जेस्ट, या लार्जेस्ट नहीं कहेंगे, टॉलेस्ट प्लांट है। जनरली ये होते हैं 150 मीटर से 200 180 मीटर तक, या 400 से 500 फीट तक, इतने हाइट के ये प्लांट हो सकते हैं बेटा। ठीक है, इतने लंबे प्लांट। सर फिर तो यस, फिर तो सर ये थोड़े ये थिन पाएंगे, थिन नहीं होंगे सर ये फिर। थिन नहीं है, यही तो कमाल की बात है बेटा। थिन कैसे होंगे? ऑल्दो आपने सुना होगा टीयरिंग इफेक्ट ऑफ विंड, जब तूफान आता है तो बड़े पेड़ गिर जाते हैं, छोटे पेड़ नहीं गिरते। वो होता है कॉलन काइमा की वजह से। कॉलन काइमा एक ऐसा टिश्यू है जो इलास्टिक है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब भी हवा चली तेज, छोटे पेड़ बेंट हो जाते हैं और वापस सीधे खड़े हो जाएंगे, जबकि जो थिक प्लांट्स है वो गिर जाते हैं। लेकिन 400 फीट हाइट पे जब आप जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है, अगर बहुत ज्यादा इलास्टिक स्टेम है तो 400 फीट की हाइट तक वो इलास्टिक स्टेम नहीं सरवाइव कर पाएगा। इतनी हाइट तभी अचीव की जा सकती है जब बहुत रिजिड टिश्यूज हों। ठीक है, पेड़ जो गिरते हैं तूफान में, जैसे नीम है, शीशम में, ये गिर रहे हैं तो वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट नहीं है और बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं है। सिकुया सेमी परवियंस का डायामीटर जो होता है ना बेटे, ठीक है, इसका डायामीटर 40 फीट तक होता है। हाइट तो है ही है, प्लस डायामीटर भी। अगर आप उसको एनक्लोज करना चाहें, हग करना चाहें प्लांट को, तो आप प्लांट को 5% भी हग नहीं कर पाएंगे, या 10% हग कर पाएंगे। मैक्सिमम आप 4 फीट तक हग कर सकते हैं। तो कितना ज्यादा डायामीटर आप सोचिए, ठीक है, कितना ज्यादा ब्रॉड है। तो ये क्या गिरेगा बेटा हवाओं में। इसीलिए इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना क्या है, नेसेसरी है इतनी हाइट अचीव करने के लिए। दैट हाइट इज अचीव्ड ड्यू टू द ऑल सेकेंडरी टिश्यूज। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल ही होती है उसमें सारी एपिडर्मिस में। अगर प्राइमरी हुई, लिविंग हुई, तो वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा प्लांट को। कहने का मतलब है कि एनिमल्स की बजाय प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और सेल वॉल का भी मेन कंपोनेंट कौन? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल के फंक्शन क्या है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी मींस हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये सब सेल वॉल के भी फंक्शन है, और सेल वॉल में भी मेनली सेकेंडरी सेल वॉल करती है ये सब। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल वॉल कहां नहीं मिलती? सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलती बेटा पिट्स पे या प्लाज्मोडेस्माटास में। सपोज ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल से कनेक्टेड है। ठीक है, मिडल लैमिला है, प्राइमरी सेल वॉल है एंड सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, मिडल लैमिला प्रेजेंट होता है, प्राइमरी भी इवन हो सकता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। पिट्स पे इस तरह से होते हैं पिट्स। ये कोई पिट का एलएस है। ठीक है, हो सकता है मिडिल लैमिला भी एब्सेंट हो, कुछ पिट्स में मिडिल लैमिला भी नहीं होता, या कुछ में हो भी सकता है, जिसको टॉरस बोलते हैं। अब पिट क्या है? सिंपली सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, तो इनके ऊपर जो भी होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड पिट्स। तो पिट्स के ऊपर थिकनिंग जनरली नहीं होती, एक्सेप्शंस हैं कुछ। ठीक है, कुछ ट्रैकिड्स ऐसे हैं या कुछ वेसल्स ऐसे होते हैं जिनमें पिट्स के ऊपर भी थिकनिंग है। पिट आपको अगर सरफेस व्यू देखेंगे तो पिट्स इस तरह से दिखेंगे। कोई भी सेल है उसको आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको पिट्स दिखेंगे। ठीक है, ये सरफेस व्यू है। लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेंगे पिट्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, यानी थिकनिंग नहीं होती इन पिट्स के ऊपर। यहाँ तो थी सेकेंडरी सेल वॉल, ये रही, और यहाँ भी है, बट यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाटर प्रूफिंग या वाटर प्रूफ होती है। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन और सुबेरिन है जो कि वाटर प्रूफ बनाते हैं सेल वॉल को। तो पिट्स के थ्रू तो वाटर का मूवमेंट होता ही है बेटे। ठीक है, अगर हम वाटर मूवमेंट की बात करें, जैसे जाइलम में ही बात कर लें, जाइलम में एक चीज होती है ट्रैकिड, सुना है किसी ने? यस सर। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स को ट्रैकरी एलिमेंट बोला जाता है जो वाटर का कंडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिड ना ओपन नहीं है, वेसल्स तो ओपन है पाइप की तरह, यहां से पानी घुसा और ओपनिंग्स के थ्रू ऊपर जाता रहा। बट ट्रैकिड्स ओपन नहीं है। तो ट्रैकिड्स में क्या होते हैं बेटा? पोर्स होते हैं, पिट्स होते हैं। यहाँ पे ये पिट है, ये भी पिट है, इन पिट्स के थ्रू वाटर जाता है। तो यहाँ देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एक ट्रैकिड, ये 2 ट्रैकिड, ये 3 ट्रैकिड आपस में एडजस्टली अटैच है। दूसरे ट्रैकिड में पानी आया सपोज पिट्स के थ्रू, ये वाटर आ गया, तो सेकंड ट्रैकिड से फर्स्ट ट्रैकिड में भी पिट्स के थ्रू जाएगा, क्योंकि पिट टू पिट कनेक्टेड है ट्रैकिड।
तो देखिए पिट टू पिट वाटर जा रहा है, अगर पिट्स पे सेकेंडरी थिकनिंग होती तो वाटर नहीं जाता, तो पिट्स के ऊपर सेकेंडरी थिकनिंग एब्सेंट होती है। क्लियर है? यस यस सर। यस एवरीवन, क्लियर है बेटा सभी को? अंजू, भूमिका, दीक्षा। द सेकेंडरी सेल वॉल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। सेकेंडरी सेल वॉल जो कि बहुत थिक है, वो थिक क्यों है? क्योंकि वो खुद भी 3 लेयर्स से बनी हुई है, L1, L2, L3, और वी कैन से S1, S2 और S3। L1 बोल लीजिए लेयर 1 या S1 S2 बोल लीजिए सेकेंडरी सेल वॉल फर्स्ट लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल सेकंड लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल थर्ड लेयर। इफ आई टॉक अबाउट द हायरार्की और द ऑर्डर, S3 इज इनरमोस्ट, ओके, दिस इज मिडिल लैमेला, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, फर्स्ट सेल। हम हमेशा 2 सेल इसलिए दिखाते हैं ताकि मिडिल लैमेला कंसर्न रह सके, ठीक है? मिडिल लैमेला एडजेसेंट सेल्स के बीच में ही होता है, एक इंडिविजुअल सेल का नहीं होता। इंडिविजुअल सेल का होता तो सरफेस सेल्स में भी होता, ठीक है? तो ये प्राइमरी सेल वॉल, ये दोनों सेल्स की बीच में ये मिडिल लैमेला। अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद है सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में भी 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेकेंड थोड़ा ज्यादा ठीक हो गया, ये तीनों बराबर होती है। तो L1, L2, L3। L3 सेकेंडरी सेल वॉल के बाद क्या होनी चाहिए? सेल वॉल के बाद क्या होती है? सेल वॉल के बाद क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? ये सेल वॉल है बेटे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म है सारा। एनी डाउट? नो सर। तो द इनर मोस्ट इज L3। L3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है। पहली बात तो खुद सेकेंडरी सेल वॉल कांटेक्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पूरी सेकेंडरी सेल वॉल तीनों लेयर, बट उसमें भी L3 कनेक्टेड होती है किससे? मतलब एडजेसेंट होती है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये ध्यान रखेंगे हम। और L1 एडजेसेंट होती है किससे? यस ललित, L1 किससे एडजेसेंट होगी? प्राइमरी सेल वॉल। L1 सर। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल्स। L1, L2, L3 को क्यों डाइवर्सिटी दी, क्यों अलग अलग बोला? बिकॉज इन दीज 3 लेयर्स L1, L2, L3 द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स इज डिफरेंट। Only the arrangement of microfibrils is different, otherwise they all are same. Composition is same. They are made up of the cellulose, hemicellulose, not pectin, sorry, cellulose, hemicellulose, suberin and lignin. All of these 3 layers, because they all are constituting the secondary cell wall. But the arrangement of microfibrils, these microfibrils which are made up of the cellulose, they are arranged differently. So they are arranged according to 3 types. One is the fibrous arrangement. Another is the angular arrangement, and third one is the lamellar arrangement, which is also called the, पहले क्या angular बोल सकते हैं हम, lamellar arrangement। ये 3 अरेंजमेंट हो सकती है बेटा, फाइब्रस, एंगुलर एंड लैमिलर, ठीक है? लैमिलर को हम हेलिकल भी बोल सकते हैं। इन तीनों में देखिए क्या होता है, फाइब्रस, एंगुलर, लैमिलर या हेलिकल में। इट इज नॉट श्योर कि फाइब्रस L1 में ही हो, फाइब्रस L1, L2 या L3 किसी में भी हो सकती है। अगर फाइब्रस इनमें से किसी एक में हो गई, L2 में हो गई सपोज अरेंजमेंट, तो फिर L2 में बाकी 2 में से कोई सी नहीं हो सकती। यानी तीनों में L1, L2 में, L3 में अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है, बट फिक्स नहीं है कि L1 में ही कौन सी होगी, ठीक है? दिस थिंग इज नॉट श्योर, इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट सेल टू प्लांट सेल या प्लांट टू प्लांट। तो फाइब्रस में देखिए क्या होता है, ये प्राइमरी सेल वॉल है सपोज, प्राइमरी सेल वॉल, यहां पे सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी सेल वॉल में अगर माइक्रोफाइब्रिल्स L1, L2 या L3 किसी भी लेयर में अगर माइक्रोफाइब्रिल्स बिल्कुल पैरेलल है प्राइमरी के, पैरेलल टू प्राइमरी, माइक्रोफाइब्रिल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 3 लेयर बताई, L1, L2, L3, तीनों में अलग अलग होंगे, इट इज नेसेसरी। ऐसा नहीं हो सकता L1 और L3 में फाइब्रस है, L2 में एंगुलर है, लैमिलर है ही नहीं, हेलिकल है ही नहीं, ठीक है? लैमिलर नहीं, हेलिकल ही लिखेंगे इसको, एग्जैक्टली हेलिकल बोलते हैं। ऐसा नहीं होगा, तीनों नेसेसरली प्रेजेंट होंगी और अल्टरनेट ही होंगी। अगर L1, L2, L3 में है तो तीनों में अलग अलग होंगी।
फाइब्रस क्या होती है? पैरेलल। म्यूट रखिए भाई। एंगुलर क्या होती है? परपेंडिकुलर टू प्राइमरी सेल वॉल। अगर ये माइक्रोफाइब्रिल्स किसी लेयर में इस तरह से अरेंज है, प्राइमरी सेल वॉल ऐसे है, माइक्रोफाइब्रिल्स ऐसे हैं, तो इनको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। ठीक है, आपस में इस तरह से अरेंज है। तो अगर परपेंडिकुलर है प्राइमरी सेल वॉल के, सपोज ये L2 है, L2 में परपेंडिकुलर है, ठीक है, L1 में थे हमारे एंगुलर, पैरेलल थे, तो अब L3 में नेसेसरली कैसे होंगे? हेलिकल। हेलिकल क्या होते हैं? सेल का जो सेंटर होता है, ठीक है, सेल के सेंटर से एंगल्स पे है। ऐसे हो सकता है ये ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। ये सेल का सेंटर है, अगर इस तरह से होते तो परपेंडिकुलर हो जाते, अगर इस तरह से होते तो पैरेलल हो जाते। इसके बीच में कहीं है, ये माइक्रोफाइब्रिल है, ये माइक्रोफाइब्रिल है, ये है 20, 30, 45, 50, 65, 70, 75, या ऐसे 110, 120, 210, 240, ओके, देन आपका 310, 320। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर छोड़ के अगर कोई और एंगल्स में है माइक्रोफाइब्रिल्स, जैसे इसी तरह से, तो क्या कहलाती है? हेलिकल अरेंजमेंट। क्लियर है तीनों? अरेंजमेंट इज क्लियर टू यू? Yes. Yes, sir. So I think I should write that these are helical, means from the angles of center. ठीक है, एंगल्स पे होते हैं सेंटर से। So this was the structure of the cell wall. Okay, we have discussed in detail the structure of cell wall, that it is made up of the three parts: middle lamella, the common point between two cells. Inner to the middle lamella on the either side, both of the cells, is the primary cell wall, and inner to the primary cells on the both cells is the secondary cell wall, which is itself made up of three layers: the L1, L2, L3. These three layers are distinguished according to the basis of microfibrils arrangement. The microfibrils can be arranged in the three layers, accordingly three types: fibrous, angular, helical, which I have explained. Okay.